Assalamu alaikum students, how are you? I do hope that all of you will be having a very good time of your life and you will be in the best of your spirits. I'm your instructor Muzaffar Saeed and today we are going to discuss verb. This will be the final lecture as far as verb is concerned. We have already had 3 lectures of verb and today will be the 4th one. In this particular lecture, we will be discussing verb, its voices and how it combines with the adjective and conjunctions to create certain errors. So without wasting time, let's go to the lightboard and start our lecture. Ladies students, once again we are on the lightboard and today we are going to discuss verb and then we will discuss its connection with adjective and conjunction. As I have already told you that verb is one of the most complex topics in English language and it is connected to so many different parts of speech. We have discussed its connection with pronoun, we have discussed its connection with noun and now we are going to discuss its connection with adjective and conjunction. But before doing it, let's talk about another important thing of verb and that is voice. Now you all know that voice, there are 2 types of voice in English language, active voice and passive voice. But the problem is that people do not define them. Even we are not aware what is voice, what is meant by voice or how can we define voice. We are completely, most of the time we are completely unaware of it. So let's define voice, what is it, and then we'll talk about active voice and passive voice. और फिर उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि what is the criteria for evaluating or judging a sentence, that whether it is a sentence of active voice or passive voice. So वो भी हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है वो किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करना है. ये एक लाइन दोबारा कह लीजिएगा. And secondly, I'll tell you how to identify active voice and passive voice. That is the most important thing because normally the method we use for identification of passive voice and active voice is again like I said while teaching you tense. This method is also very faulty. The method of identification we use for recognizing active voice or passive voice. और नॉर्मली हमें क्या बताया जाता है, हमें नॉर्मली बताया जाता है कि पैसिव वॉइस क्या होता है जी, जिसमें बाय आ रहा हो. बट मैं आपके लिए लिख रहा हूँ एग्जांपल. A function is celebrated daily in our college. Now there is no by तो नहीं आया, तो फिर ये क्या पैसिव वॉइस नहीं होगा, ये पैसिव वॉइस ही होगा. तो अगर ये पैसिव वॉइस है तो फिर हम इसको किस तरह से जज करेंगे कि ये पैसिव वॉइस है. सो देखते हैं सबसे पहले कि वॉइस क्या है, क्योंकि वॉइस का पता होगा तो फिर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का भी पता चलेगा. वॉइस is a form of verb that tells us whether the subject of a sentence does something or
something is done to it. So वॉइस क्या है? ये फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें ये बताती है कि सब्जेक्ट खुद कुछ कर रहा है या उस पर कुछ किया जा रहा है. And remember, I've already told you in the lecture of subject verb agreement that subject is not always the doer of an action. ज़रूरी नहीं है, हमें जो पढ़ाया जाता है कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है. It is not always the case. हमेशा ऐसा नहीं होता. ये मुमकिन है कि सब्जेक्ट किसी वक्त ऐसा हो कि जो काम कर रहा हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि सब्जेक्ट ऐसा हो जो काम ना कर रहा हो. जैसे इसकी मैंने बेशुमार एग्जाम्पल दी, ये एग्जाम्पल भी इटसेल्फ इसकी है. अ फंक्शन इज सेलिब्रेटेड इन आवर कॉलेज. हियर आवर सब्जेक्ट इज फंक्शन, बट इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, रादर इट इज सेलिब्रेटेड. इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है. तो वो फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमें बताएगी कि कोई वर्ब काम कर रहा है, कोई सब्जेक्ट काम कर रहा है या उस पर कोई काम किया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उस फॉर्म ऑफ वर्ब को हम वॉइस कहते हैं. अब दो वॉइसेस हैं, आपने पढ़ रखी है, एक्टिव और पैसिव. एक्टिव मीन्स टू एक्ट. और इसीलिए when the subject acts, the verb is in active voice. जब सब्जेक्ट एक्ट करता है, जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? बिकॉज सब्जेक्ट इज एक्टिंग, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एक्टिव वॉइस. ठीक है, इसीलिए इसका नाम. एटमोलॉजी जब आप सीख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी उस कॉन्सेप्ट को समझने में. दूसरी तरफ पैसिव. पैसिव मीन्स Passive means to receive. तो जब when the subject receives an action, the verb is in passive voice. Passive का मतलब ही ये है to receive. यहाँ पर एक्टिवली काम नहीं कर रहा, यहाँ पर वो क्या कर रहा है? किसी एक्शन को रिसीव कर रहा है. That is why we are calling it passive voice. Examples देखिएगा. If I say Ali stolen my pen, now this sentence is of active voice, and this is the right method of identification for active voice or passive voice. This is how you should identify कि sentence जो है वो active voice का है या passive voice का है. Just look at the subject. अगर वो कोई काम कर रहा है, वो act कर रहा है, क्योंकि active का मतलब ही क्या था? To act. Here the subject is Ali and he has stolen, he has actively performed a job. तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? एक्टिव वॉइस कह रहे हैं. जबकि दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूँ कि my pen has been stolen, here the subject is pen and it is not doing anything, rather it has been stolen.
ये कुछ नहीं कर रहा बल्कि उल्टा इसको चुराया गया है. It has received an action. That is why we are calling it a passive voice sentence, or I can say that the verb in this particular sentence is of passive voice. ये active voice का verb नहीं है, ये passive voice का verb है. अब important चीज़ इसमें जो एक और है वो ये कि when to use active voice and when to use passive voice, that is the most important thing. Because एंट्री टेस्ट में आपको इस तरह से भी MCQ आ सकता है कि someone has stolen my pen, और दूसरी ऑप्शन आ जाएगी my pen has been stolen. अच्छा, दूसरा एक और MCQ आ जाएगा, वो होगा कि अली has stolen my book, and beta, my book has been stolen by Ali. So let's talk about the first MCQ. आपको ये दोनों सही लगेंगे. बाय समवन लगा होगा तो तब भी ठीक है, अगर बाय समवन नहीं लगा होगा तब भी ठीक है, जुमला दोनों तरह ठीक है. बट आपको लगेगा कि ये तो दोनों ही पे सेंटेंस ठीक हुए ना, कि समवन हैज स्टोलन माय पेन एंड माय पेन हैज बीन स्टोलन. ये बाय समवन लगा हो तो तब भी आपको लगेगा कि बोथ दी सेंटेंसेस आर करेक्ट. सेम इज द केस विद नेक्स्ट एमसीक्यू. अली हैज स्टोलन माय बुक एंड माय बुक हैज बीन स्टोलन बाय अली, सो दैट इज आल्सो गुड इनफ. आपको दोनों ही सही लगेंगे, बिकॉज आपको शुरू से ही बताया और सिखाया जा रहा होता है कि पैसिव वॉइस क्या होता है, जिसमें बाय लगा होता है और बाय के बाद आप क्या कर रहे होते हो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं. तो आपको इस वजह से दोनों ठीक लगेंगे. हालांकि इस वाले एमसीक्यू में ऑप्शन बीटा जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, और सेकंड वाले एमसीक्यू में ऑप्शन अल्फा जो है दैट इज द राइट ऑप्शन. नाउ आई टेल यू व्हाई इट इज द राइट ऑप्शन in this MCQ, why B is the right option, and in the next MCQ why option alpha is the correct option. That is something about the usage of passive voice, जो हमें बताया ही नहीं जाता. हमें लगता है कि दुनिया का हर सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो सकता है. हालांकि दुनिया के हर सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है ही इलॉजिकल. एक्टिव वॉइस का यूजेज अपना है और पैसिव वॉइस का यूजेज अपना है, और आपको यूजेज से रिलेटेड बहुत बार MDCAT में क्वेश्चंस आ जाते हैं, MCQs आ जाते हैं. अब यूजेज देख लें कि पैसिव वॉइस is only used when the doer of an action is missing. जब डोर ऑफ एन एक्शन मिस होगा ना, जब डोर ऑफ एन एक्शन का पता नहीं होगा, तो ओनली देन विल यूज पैसिव वॉइस. अदरवाइज मैं लिख भी देता हूं, if the doer of an action is
present in the sentence only use एक्टिव वॉइस। जब डूअर मेंशन हो तो फिर एक्टिव वॉइस हमने यूज करना है, फिर पैसिव वॉइस यूज नहीं करना। अब पैसिव वॉइस का मकसद था, एक पैसिव वॉइस का मकसद ये था कि जब डूअर मेंशन नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ समवन हैज स्टोलन माय पेन, तो बिकॉज द डूअर इज नॉट मेंशन्ड, दैट इज व्हाई इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग दैट समवन, क्योंकि समवन को हाईलाइट करने का तो तुक ही नहीं बनता ना, समवन को क्यों हाईलाइट करेंगे आप, वो तो अननोन आदमी है, अननोन आदमी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। उसके बजाय फिर आप क्या करेंगे, उसके बजाय जो आपका एक्ट है उसको आप क्या करेंगे, एम्फसाइज करना शुरू कर देंगे। दैट इज व्हाई आई हैव सेड माय पेन हैज बीन स्टोलन, फिर इसको सब्जेक्ट बना देंगे, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सब्जेक्ट इज द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। तो जो चीज़ नोन ही नहीं है, जो अननोन है, उसको हम टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्यों बनाएंगे। टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो ऑब्वियसली वही चीज़ बनेगी दैट इज वेरी वाइटल और द थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। एक अननोन चीज़, एक वेग, एक अनक्लियर चीज़ कभी भी हमारा जो है वो सब्जेक्ट नहीं बनेगी। इसलिए पैसिव वॉइस याद रखें। हालांकि प्रॉब्लम कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आपको लग रहा है कि जो कन्वर्जन आपने सीखी हुई है मैट्रिक में, एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव, अगर उस कन्वर्जन के हिसाब से देखें तो चारों के चारों जुमले ठीक हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि हियर द डूअर वाज नॉट मेंशन्ड, दैट इज व्हाई वी यूज्ड पैसिव वॉइस एंड करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन बीटा। And here the doer was there, the doer of an action was there. That is why we have chosen option alpha and not option beta. So I do hope कि इस सारे डिस्कशन के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस कब यूज़ करना है और पैसिव वॉइस कब यूज़ करना है। एंड द सेकेंड important thing is the identification of active voice and passive voice. हम आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को उस तरह से ट्रीट नहीं करना या उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं करना जो एक पुराना तरीका आप इस्तेमाल करते चले आ रहे थे कि एक्टिव वॉइस के लिए हमने क्या यूज़ करना है, पैसिव वॉइस के लिए हमने बाय यूज़ करना है। उस तरीके को अब आप बड़ी ईजीली डिस्कार्ड कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव the true concept how to identify active voice or how to identify passive voice. So now we move on to our next step, that is the errors of verb in respect to adjective and conjunction. ले मेरे बच्चे एक बार फिर से हम लाइट बोर्ड पे हैं, and now we are discussing the connection of verb with conjunction and with adjective. So there are certain conjunctions which take as, जिनके बाद हम हमेशा as लगेगा ही लगेगा। वो conjunctions कौन सी हैं, मैं लिख भी देता हूँ। Following conjunctions will be followed by as। और ये कौन से कंजंक्शंस हैं, ये एक इन अ वे एक सिमिली के तौर पर यूज होती हैं। कौन सी हैं जी, रिगार्ड, पोर्ट्रे, depict, represent, define,
mention, describe, treat, etc. All these conjunctions will take as, because ये एक तरह से कंपैरिजन के लिए ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं इनकी. He regards me as his brother. अब यहाँ पर as की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज वो भाई के तौर पर उसका एहतराम नहीं कर रहा, वो उतना ही एहतराम कर रहा है जितना वो अपने भाई का करता है. इसी तरह बहुत कॉमन आप एक वर्ब यूज़ करते हो, साइंसेस में भी आप यूज़ करते हो, कहते इट इज़ डिफाइंड एज, आगे कोई भी लाइन आप उसके लिए चूज करते हो. इन द सेम वे आप डिस्क्राइब करते हो कि दिस टाइप ऑफ फिनोमेना is described as insomnia. ठीक है. अब as इस तरह की चीज को हम बता रहे हैं. In the same is the case with treat. He treats me as his जूनियर. ठीक है, कि वो वैसे ही मुझे ट्रीट करता है जैसे मैं उसका जूनियर हूँ, या जैसे वो अपने जूनियर्स को ट्रीट करता है वैसे ही वो मुझे ट्रीट करता है. तो अब ये सारी चीज़ें जो है ये एग्जाम्पल के तौर पे, सिमिली के तौर पर यूज़ हो रही हैं. दैट इज़ वाई दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय एज. अच्छा, अगर ये एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ ना हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर एज इनमें नहीं आएगा. जैसे मैं आपसे कहूँ, इसकी एग्जाम्पल इधर नीचे लिख रहा हूँ. He mentioned my name on the list. Here, because it is not used as a simile or to express a comparison, that is why we have not used as after mentioned. Here is another example. He treats me affectionately. Again, we do not need as after treat, because here we are not comparing the two things. हम दो चीज़ों को compare नहीं कर रहे. कंपेयर करेंगे तो इनके बाद एज लगेगा, कंपैरिजन नहीं है तो फिर एज लगने की ज़रूरत नहीं है. देन देयर आर सम वर्ब्स these verbs will not take as. Now why I am telling you this? Because generally, commonly we use as, which is incorrect. 4 total verb हैं,
name, call, term and think. अब ये कॉमन है, नेम के साथ तो आप बहुत ही करते हो. He was named as. No need to add as after name, because name तो आप डायरेक्टली उसी को कह रहे हो ना. ठीक है. Called, this is called as. Again it is incorrect. इनके बाद जो है मसलन मैं कहूँ he termed his attitude as rude नहीं होगा, बिकॉज वो तो खुद उसी के एटीट्यूड को कह रहा है ना, उसके एटीट्यूड को एज एन एग्जाम्पल यूज नहीं कर रहा. सो दिस विल नॉट बी द राइट ऑप्शन. द राइट ऑप्शन विल बी ही termed his attitude rude. He termed his attitude rude. कि उसने उसके एटीट्यूड को क्या कहा कि उसके एटीट्यूड रूड था. तो इनके बाद जो है वो हमने एज यूज नहीं करना. नाउ द लास्ट थिंग, एडजेक्टिव. All adjectives that show emotion or intensity are followed by infinitives. जितने भी एडजेक्टिव्स इंटेंसिटी या इमोशंस को शो करते हैं उनको हम क्या करते हैं, इन्फिनेटिव्स यूज़ करते हैं उनके साथ. जैसे मैं कहूँ it is hard persuading him. Now hard के बाद persuading नहीं आएगा, क्या आएगा? It is hard to persuade him. इसी तरह मैं कहूँ it is sad losing the match from winning position. Now this will be an incorrect thing. क्यों? क्योंकि सैड इमोशन है. तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? It is sad to lose the match from a winning position. So इन सब के बाद हम क्या यूज करेंगे?
इन सब के बाद हम इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, जेरेंड यूज़ नहीं करेंगे। सो होपफुली कि इससे आपको क्लियर होगी होंगी चीज़ें। अब इन्हीं रूल्स के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आए आपको लेके चलता हूँ स्लाइड्स पे। ले स्टूडेंट्स, हम आ गए स्लाइड्स पे एंड बिफोर अटेम्प्टिंग MCQs लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स। He regards me like his brother नहीं होगा, he regards me as his brother होगा। and here lies the difference। आपको लगता है कि as और like similar चीज़ें हैं तो as लगा दें, like लगा दें, एक ही बात है, but no, इसके बाद आपने क्या लगाना है, he regards me as his brother लगाना है, like his brother नहीं लगाना। then he treats me like a friend, like his friend, no, he treats me as his friend। नेक्स्ट देखिएगा, ही टर्म्ड हिज बिहेवियर एज इनअप्रोप्रिएट नहीं होगा, ही टर्म्ड हिज बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट, बिकॉज इनके बाद नेम, कॉल, टर्म, थिंक, इनके बाद एज लगने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर स्ट्रेट अवे नेमिंग दैट थिंग। आगे देखिएगा जी, द टर्म्स इफ वाइडली एक्सेप्टेड वुड हैव बीन द डेथ सेंटेंस नॉट ओनली फॉर द ऑटोमन एम्पायर बट व्हाट वाज नाउ करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज टर्की। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट MCQ देखिएगा, इन 1877 एट द एज ऑफ 55 ही बिगैन टू स्टडी द कैटल डिजीज नेम्ड एज एंथ्रेक्स नहीं होगा, नेम्ड एंथ्रेक्स। सो राइट ऑप्शन फॉर अस इन दिस MCQ विल बी ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट, लेट अस look for a moment at this second group, often called as underdeveloped country, often called as नहीं होगा, often called underdeveloped countries। So the right option for us will be option beta। Next देखिएगा, adjectives के बारे में हम बात कर रहे थे, adjectives की चेक कर लें examples। It is very difficult convincing her, incorrect है, डिफिकल्ट के बाद इन्फिनेटिव लगना है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस हर। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन भी क्या बन रही है, बीटा ऑप्शन बन रही है। इट इज़ ईजी गोइंग देयर, इट इज़ ईजी टू गो देयर, दैट इज़ द राइट ऑप्शन एज शोन इन द स्लाइड। ले जी, हम एक बार फिर लाइट बोर्ड पे हैं एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक वर्ब्स, और वो स्पेसिफिक वर्ब्स ऐसे हैं जिनको कॉमनली हम गलत इस्तेमाल करते हैं। सो वो देखते हैं कि वो स्पेसिफिक वर्ब्स कौन से हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ एरर्स डू वी मेक व्हाइल यूजिंग दीज वर्ब्स। सो उसमें सबसे पहला जो है बहुत ही कॉमन है, दैट इज डिनाई एंड रिफ्यूज। डिनाई क्या होता है जी? Deny is used to refute an allegation। किसी इल्ज़ाम का जब इनकार करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे deny। जबकि refuse it is merely used for mere refusal to an offer। कोई ऑफर आपको की जा रही है और उसको आप रिफ्यूज कर देते हैं, जैसे ही रिफ्यूज टू डाइन विद मी, ही रिफ्यूज टू वर्क विद मी, ठीक है, शी रिफ्यूज टू हैव कॉफी विद मी। ठीक है, ज़ाती तजर्बा नहीं बता रहा, वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि रिफ्यूज़ क्या करेंगे, आपने किसी को कोई पेशकश की और वो पेशकश क्या हुई, रिजेक्ट होगी, उस रिजेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम रिफ्यूज़ यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट हमारा वर्ब है, दैट इज swim and float. Now these are two very important verbs. Normally you feel that swim means you feel that swim is used for living beings and float is used for non-living beings, but that is not the case. ये बिल्कुल भी ऐसा मामला
नहीं है। स्विम हम यूज करते हैं मूविंग विद एफर्ट, कि अगर आप जान लड़ा के, कोशिश करके, मेहनत करके किसी सरफेस पे, पानी पे मूव कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो होगा स्विम। और फ्लोट क्या होता है, मूविंग विदाउट एफर्ट। अब आप कहेंगे सर बात तो वही होगी कि वो इंसानों के लिए और वो इंसानों के लिए नहीं है, या वो जानदार चीज़ों के लिए और वो बेजान चीज़ों के लिए। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, डक is an exception. Duck, although it is a living being, but because it moves without effort, that is why इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, swim यूज नहीं करते, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, float यूज करते हैं। ठीक है। और एक और तरीका भी इसको यूं भी समझ सकते हैं कि फ्लोट क्या है, जो सरफेस के ऊपर तैर रही है, मतलब जैसे डेड बॉडी है। अब डेड बॉडी इज एक्चुअली अ ह्यूमन बीइंग, है तो इंसान ही है, डेड बॉडी है बट इंसान ही है ना। तो वो ऊपर मूव कर रही है चूंकि, विदाउट एफर्ट मूव कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको स्विम नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको फ्लोट कहेंगे। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विम एंड फ्लोट। इफ समथिंग इज मूविंग विदाउट एफर्ट, इट इज फ्लोटिंग, and if something is moving with effort, it is swimming। तो ये इनके दरमियान देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम जो कर रहे हैं वो तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, वो है lie, lie और lay। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए कि ये वाला lie जो है ये होता है झूठ बोलना, ये वाला lie जो है ये है लेटना, लेट जाना किसी बीइंग, ह्यूमन बीइंग का। और ये वाला ले जो है ये है रखना या लेटाना। ठीक है, किसी बेजान चीज को जब आप रखेंगे तो वो क्या होगा, दैट इज ले। अब इनकी सेकंड फॉर्म एक्चुअली जो है वो प्रॉब्लमैटिक है। इसका सेकंड फॉर्म क्या है, लाई का सेकंड फॉर्म है लाइड, लाइड और लाइंग, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल ये बनेगा। ये वाला जो लाई है खुद लेटने वाला, इसका होगा ले, लेन और लाइंग। एंड थर्ड वन ये वाला ले जो है इसका होगा सेकेंड फॉर्म लेड, लेड और लेइंग। ठीक है, बिछाना, किसी को रखा हुआ होना लाइंग, और ये किसी चीज को खुद रखना, ये क्या होगा, लेइंग। या फैलाने के सेंस में भी कर सकते हैं। मुर्गी के अंडे देने के लिए भी आप यही वाला ले इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है जी, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप इन दोनों की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म देखें तो सेम है। सो वर्ड चॉइस का अक्सर देख लेते हैं एरर के लेइंग लगना है या लाइंग लगना है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन एरर। फिर ये वाला जो ले है ये फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म ये दोनों सेम है, तो इन दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ले कहाँ लग रहा है और
लाए जो है वो कहाँ लगने हैं। और फिर इसी तरह लेड और लेन, इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ये वाला ले जो है, लेट जो है ये किसी चीज़ का रखना या किसी चीज़ को लटाना, और वो वाला लेन जो है दैट इज़ खुद किसी चीज़ का लेट जाना। सो इनमें डिफ्रेंशिएट करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ द वर्ब नो। अगर तो कोई वर्ब नो if no is used for a skill, it will be followed by how to। तो फिर इसके बाद हम क्या लगाएंगे, हाउ टू लगाएंगे। अब इनके जल्दी से हम इनके एरर कर लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम अपने स्लाइड्स पे जाएंगे तो बाकी एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे। lie, he was laying on the ground, ये ऑप्शन अल्फा, और बीटा ऑप्शन क्या होगी कि he was lying on the ground. Now we know कि he is a living object. इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, laying नहीं यूज़ कर सकते। laying तो है किसी बेजान चीज़ का रखना या लेटाना। So our right option will be option beta. Same is the case with no के बाद how to कैसे लगने, he knows to drive a car. It will be an incorrect thing to have. The right option will be he knows how to drive a car. So this is how we use the verb know if it is used for a skill. Lastly, consist, the verb consist does not have a progressive form. इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं है। प्रोग्रेसिव फॉर्म से मतलब क्या है कि इसके कोई और फॉर्म नहीं बन सकती, कंसिस्टेड नहीं बन सकता, कंसिस्टिंग नहीं बन सकता, ठीक है। इट कैन ओनली बी यूज्ड एज कंसिस्ट। सपोज मैं कहूँ कि पॉलिटिकल stability
consisted of consisted in economic Now this is incorrect because consisted cannot be used. Correct क्या होगा? Political stability consists in economic It consists in economic stability. So our right option will be option beta and not the option alpha. So अब इन verbs के MCQs करने के लिए आए चलते हैं स्लाइड्स पे. लेकिन स्टूडेंट्स हम आ गए एक बार फिर स्लाइड्स पे और एग्जांपल्स आप एक बार फिर देख लें कि फ्रीडम इज कंसिस्टेड इन विल पावर. नो, कंसिस्ट हमने बताया था कि नॉन प्रोग्रेसिव फॉर्म है, इसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनेगी. तो फ्रीडम कंसिस्ट इन विल पावर. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बीटा एज शोन ऑन द स्क्रीन. देन एक और एग्जांपल भी इसी के देख लें. हिज ब्यूटी इज कंसिस्टिंग इन हिज मैनर्स. नो, हिज ब्यूटी कंसिस्ट इन हिज मैनर, कि उसके सारे का सारा जो खूबसूरती है वो उसके मैनर्स में. नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. The duck is swimming. No, I've already told you that the duck can actually move on the water without effort. और चूंकि वो without effort move कर रही है तो इसके लिए हम क्या use करते हैं? The duck is floating. Then Shan is floating in the river. No, because Shan cannot float in the river. He must strive. He must make an effort in order to move in the water. तो इसलिए हम क्या कहेंगे? Shan is swimming in the river, and you can see it on the slide as well. He denied to help me. I have already told you, deny हम use करते हैं allegation को refute करने के लिए. तो denied to help me नहीं कहेंगे, he refused to help me कहेंगे. और दूसरी तरफ he refused that he had broken the chair. He refused नहीं होगा because it is an allegation कि तुमने कुर्सी तोड़ी है. वे ये एलिगेशन है, ये इल्ज़ाम है, इसके डिनाइल के लिए आप क्या कहेंगे? डिनाई. इसको रिफ्यूट करने के लिए डिनाई यूज़ करेंगे. तो ही डिनाइड दैट ही हैड ब्रोकन द चेयर. नेक्स्ट देखें, लाए और ले के हवाले से हमने चीज़ें की थी, तो वो ज़रा देख लेते हैं कि पास्टर सजेस्टेड कलेक्टिंग द एग्स लेन बाय ईच. मौत नहीं करेंगे. अंडों वगैरह के लिए हमने क्या कहा था? लेड बाय ईच मौत. So our right option will be option Charlie. Next देखें, she had left the tea things ready on the table. एक extra cup laid out करेंगे, ठीक है, with bread and butter. extra cup laid, लेन नहीं करेंगे because यहाँ पे लेन तो living being की थर्ड फॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है. So यहाँ हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन Charlie. आगे बढ़ते हैं. He staggered inside to the astonishment of the French officer quartered there and lied नहीं होगा, क्या होगा? And lay, because that is the second form of lie. इंसान कोई जब लेटेगा तो उसके लिए lie, lay और थर्ड फॉर्म हम उसकी क्या करते हैं? लेन. तो इसलिए हम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, चूँकि पास्ट चल रहा है तो सेकेंड फॉर्म हम उसकी करेंगे ले. एंड hence our right option will be option delta. Next देखिए, that night he laid in bed. laid उसको तो किसी ने नहीं लिटाया ना, वो खुद बेड पर लेटा हुआ है. तो he lay in the bed picturing himself. ठीक है, ये आगे हम कंटिन्यू करेंगे. and the right option for us in this MCQ will be option beta. Once I started, the others will help, he said without looking at her, laying out the blueprints. अब वो उसको फैला रहा है, ठीक है, वो नक्शे फैलाए जा रहे हैं. They are non living, तो laying कहेंगे, lying
नहीं कहेंगे, वो खुद ब खुद नहीं फैल रहे बल्कि उनको फैलाया जा रहा है। तो ऑप्शन क्या बनेगी? दैट इज ऑप्शन अल्फा। एंड शी हैड बीन हाइडिंग दैट सोर थ्रोट फॉर 3 days एट लीस्ट एंड लेइंग टू हर पेरेंट्स, नहीं होगा, क्या होगा? अब वो झूठ बोली थी ना, एंड लाइंग टू हर पेरेंट्स इन ऑर्डर टू एस्केप सच एन आउटकम एज दिस। तो लाइंग यूज करेंगे और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज बीटा। ले स्टूडेंट्स, इन स्लाइड्स के लिए इतना ही। नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर लाइट बोर्ड ताकि हम अपना बाकी का लेक्चर कंप्लीट कर सकें। ले स्टूडेंट्स, once again we are at the light board, and again finally we are discussing some of the specific verbs that can cause some trouble for you. The very first one we are discussing in this particular chunk is hang and hang. Now these two words actually depict different meaning. This hang is having the form of verb hung and hung. This means लटकाना, लटका हुआ होना। If something is hanging तो ये वाला, और ये वाला जो hang है that is hanged, or third form is also hanged. इसका मतलब होता है फांसी, फांसी देना, to execute someone. So these two verbs must be used very carefully, because you can see how much difference can they create. कि बजाय कहना कि किसी चीज़ का लटकाना और कहीं के बंदे को जो है वो आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो ये बहुत दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सो इसको आपने बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल भी दे देता हूँ आपको, आपके टेक्स्ट की लाइन भी है। वो कहते हैं कि about the woodland I shall go to see the cherry hung with snow. It is not hanged with snow, because चेरी को फांसी नहीं दी जा रही, चेरी क्या है? उससे लटकी हुई है। The next one is बड़ा इंपॉर्टेंट है, बियर और बियर। इस बियर को हम यूज करते हैं बोर और बॉर्न, और इसको हम यूज करते हैं बोर और बोर्न। ये वाला बियर जो है दैट इज यूज फॉर, it means to give birth, and this bear means to tolerate something, किसी चीज़ को छोड़ देना। जैसे फिर एक टेक्स्ट की लाइन ही आपको कोट कर देता हूँ, कहते हैं कि but how great were they who the pains of that black day.
और यहाँ पर बोर ये वाला बोर है, बर्दाश्त करने वाला बोर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बोर और बोर में तो बेसिकली डिफरेंस नहीं है, द रियल डिफरेंस लाइज विद बॉर्न एंड बॉर्न। सो इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। Another thing is give exam and take exam. Again, it is important. Give exam is actually used for teachers, while take exams is used for स्टूडेंट्स। अब ये उर्दू में हम इसको रिवर्स इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में हम बच्चों के लिए कहते हैं वो इम्तहान दे रहे हैं और टीचर्स के लिए कहते हैं इम्तहान ले रहे हैं। आई पर्सनली फील दैट उर्दू में हम गलत इस्तेमाल करें, हालांकि आप बच्चों को मेजॉरिटी को यही लगता है कि इंग्लिश में हम गलत इस्तेमाल करें, बट दैट इज़ नॉट द केस। देखिए, ड्यूरिंग एग्जाम्स द टीचर एक्चुअली गिव्स द टेस्ट ना, वो आपको पेपर देता है, ही सेट्स द टेस्ट, तो ही इज एक्चुअली गिविंग द एग्जाम, यू आर एट द रिसीविंग एंड, आप तो वसूल कर रहे हैं ना उसे, यू आर रिसीविंग दैट टेस्ट। इसलिए स्टूडेंट्स टेक द एग्जाम्स व्हाइल द टीचर्स दे गिव एग्जाम्स। सो इन दोनों को भी ध्यान से डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। फिर एक और वर्ब है want। want के बारे में चीज देखने जरा, इट इज नॉट फॉलोड बाय दैट, इसके बाद दैट नहीं लगता, इट इज followed by object plus infinitive। इसके बाद ऑब्जेक्ट और इन्फिनेटिव लगेगा। एग्जाम्पल भी इसके नीचे ही लिख देता हूं। ऑप्शन अल्फा, he wants that I should teach him English। जबकि बीटा में देखें, he wants me to teach him now beta is our right option। why? because he wants me। me क्या है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगने? ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा इन्फिनेटिव। सो want के बारे में ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। लास्ट वन फॉर दिस लेक्चर इज cannot help is followed by gerund। cannot help के बाद क्या लगेगा? gerund लगेगा। he could not help laughing, कि वो अपनी हंसी रोक ना पाई। तो cannot help या could not help के बाद क्या लग रहा है? gerund।
But one important thing, if cannot help is followed by but, it will take bare infinitive. अगर cannot help के बाद but लग रहा है तो फिर gerund नहीं लगेगा, फिर इसके साथ क्या लगेगा, infinitive लगेगा. जैसे he cannot help but he cannot help but laugh. ठीक है, तो अब यहाँ पर laugh लग रहा है, अब यहाँ पर laughing नहीं लग रहा. अब इन सारे रूल्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए लेट्स गो टू द स्लाइड एंड सी व्हाट वी आर अप टू. लेट्स स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर ऑन द स्लाइड्स और हम देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें हम करेंगे. एग्जांपल्स देख लें. ही हैज़ बॉर्न मेनी चैलेंजेस इन हिज लाइफ. अब ये बॉर्न पैदा होने वाला बॉर्न है, तो सेकेंड वन इज द राइट ऑप्शन. ही हैज़ बॉर्न मेनी चैलेंजेस. बियर, बोर और बॉर्न. ई वाला बॉर्न जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू टॉलरेट. नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल. ही वॉज बॉर्न इन मार्च. अब ये ई वाला बॉर्न जो है ये तो बर्दाश्त करने के लिए होता है, पैदा होने के लिए हम क्या यूज करते हैं, विदाउट ई. तो ही वॉज बॉर्न इन मार्च, ऑप्शन बीटा जो है दैट इज द राइट ऑप्शन. ही हैंग द पिक्चर. अगेन अब पिक्चर को फांसी नहीं दी जा रही, पिक्चर को लटकाया जा रहा है, तो ही हंग द पिक्चर होगा, ही हैंग द पिक्चर नहीं कहेंगे. And he was hung as per court orders. No, he was hanged as per court orders. Reason, कोर्ट ऑर्डर पे उसको लटकाया जाएगा लेकिन फांसी देने के सेंस में लटकाया जाएगा. नेक्स्ट देखिए, टेक टेस्ट और गिव टेस्ट. द स्टूडेंट्स आर गिविंग द टेस्ट. नो, बिकॉज मैंने आपको बताया कि टेस्ट दे कौन रहा है, टीचर दे रहा है. द टीचर इज गिविंग द टेस्ट होगा. द स्टूडेंट्स आर टेकिंग द टेस्ट भी कह सकते हैं, डूइंग द टेस्ट भी कह सकते हैं, सिटिंग फॉर द टेस्ट भी कह सकते हैं. So all these three verbs can be used, but you cannot use the students are giving the test. On the other hand, the teacher is taking the test. It is incorrect as shown in the slide. The teacher is giving the test or the teacher is setting the test, and you can see this phenomena on the slide as well. Then कुछ examples भी हम इसकी MCQs भी कर लेते हैं. Rubber tires upon which children had swung in backyards. Rubber tires upon which the children had swung in the backyards. Hang suspended नहीं कहेंगे, hung suspended कहेंगे. So our right option will be option Charlie, and you can see it on the slide as well. If you do not dig it, said they, before the king you will go and then you will be hung. अब यहाँ hung नहीं करेंगे because उसको execute किया जा रहा है. And then you will be hanged, and our right option is option beta. Next MCQ देखते हैं. Young ruffian, I'm hanged. I'm hanged नहीं हो सकता, I'm hung नहीं हो सकता, I am hanged होगा यहाँ पे, because वो इस context में कह रहे हैं कि मैं मर जाऊँ, मैं फांसी लग जाऊँ. तो if I'm hung नहीं हो सकता, if I am hanged, if I can think of any reason to let him off. ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगी, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन अल्फा. आगे देखिए, इफ यू हैड बीन बॉर्न 200 years ago, you would have had about 1 chance in 8 to be 1 year old. अब यहाँ पर बॉर्न जो है वो कौन से वाला है, वो बॉर्न पैदा होने वाला नहीं है, वो बर्दाश्त करने वाला नहीं है, बल्कि पैदा होने वाला है. इसलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन भी क्या होगी, दैट इज ऑप्शन चार्ली, जिसमें विदाउट ई वाला बॉन्ड जो है वो हम यूज करें. ये देखिएगा लास्ट वन,
she wants that I should teach her English. I have already given that example on the light board as well. She wants me to teach her English. ठीक है, because wants के बाद आपने object लगानी है और फिर infinitive use करना है. Cannot help को भी देख लें. I cannot help to do so under these circumstances. I cannot help doing so under these circumstances. तो cannot help के बाद आपने क्या use करना है? Gerund use करना है. और cannot help but भी देख लें. Last MCQ. Hira could not help but agreeing with her friend. No, Hira could not help but agree with her friend. अब यहाँ पर agree हम क्यों use करें? Because cannot help के बाद क्या आ रहा है? But आ रहा है. तो इस तरह से हम इन चीज़ों को करेंगे. I hope so कि आपको इन MCQs के बाद ये सारी examples बहुत clear हो गई होंगी. ले जी, that's it for today. आज का हमारा lecture complete हुआ. It was a very vast topic, very lengthy topic, verb and a very complex one. I do hope that you have learned a lot, but in case if you have any question, any query, do let me know. All your questions will be addressed, all your questions will be answered, so do not hesitate to ask questions in the comment box. मिलते हैं अगले लेक्चर में. Till then अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जीते रहें, खुश रहें. अल्लाह हाफ़िज़.